Hello students, good morning. Jai Swami Narayan. All of you, welcome to class 4th in Atmiya Green School. My name is Prajakta and I'm your maths teacher. Now we'll start lesson number 5, factors and multiplies. So now all of you look at in your textbook. We'll start chapter number 5, factors and multiplies. So before starting our today's topic, first we will see what we had learned. So first we had done the multiplies. Then after we had done the property of multiplies. So how many property of multiplies, student? Yes, so 5 property of multiplies. So first property of multiplies is every number is multiple of itself. Every number is multiple of itself. Then property number 2, every number is multiple of 1. Every number is multiple of 1. Then property number 3 is a multiple of a number is always greater than or equal to number itself. A multiple of number is always greater than or equal to number itself. Then property number 4, a number has uncountable numbers of multiplies. A numbers has a uncountable numbers of multiplies. Then property number 5, there is the no largest multiple of a number. There is the no largest multiple of the number. So these are the property of multiplies. Then after we had done the odd and even number. So which number is known as the odd number and which number is known as the even number? The even number, a number which is the multiple of 2 and number which is completely divisible by the 2, this is known as the even number. And what is the odd number? The number which are not divided by 2, the number which is not multiple of 2 is known as the odd number. So these are the we had done. Then after we had done the factors. So factor means a number. Factors of multiple divide the numbers without leaving a remainder. When we are doing the division, after the doing divisions, then remainder will be 0. After the doing division, we will get the remainder is 0, means these are the factor of that number. Then multiplies mean we multiply the two most number, we get the product. When we are multiply the two number, we will get the product. So the product of multiple of each number is multiplied. Each number is factor of the product. जो भी multiplication का आंसर मिलेगा, जैसे 56, 8 इंटू 7 करेंगे तो 56, दिस इज द क्वेश्चन. तो जो भी क्वेश्चन होगा उसका मल्टीपल ये दो नंबर मतलब 8 और 7 इसका क्या है, मल्टीप्लाइज है. देन फैक्टर 56, बोथ 3 and 5 आर द फैक्टर ऑफ 15. यहाँ पे 3 और 5 फैक्टर्स है, 3 और 5 फैक्टर्स एंड 15 इज द मल्टीपल ऑफ 3 and 5. So these are we had done. Then after we had done the following diagrams called the factor trees. So factor tree, they show the factors of number. The number 1 is not show the factor tree since it is the factor of every number. 1 हम जब हम फैक्टर ट्री निकालेंगे तो उस समय हम 1 को नहीं शो करते, क्योंकि 1 ये सारे नंबर का फैक्टर्स होता है, इसलिए यहाँ पे हम 1 को शो नहीं करते. जैसे 6 है, 6 के फैक्टर 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 होता है. देन 12 के फैक्टर 6 इंटू 2 करेंगे तो 12 होता है. नाउ 2 को हम एज इट इज़ लिख दिया है क्योंकि 2 के अभी फैक्टर्स नहीं निकलेंगे. देन 6 के फैक्टर 3 and 2 है, तो हमने 6 के फैक्टर लिख दिए यहाँ पे. देन आफ्टर वी हैड डन द एक्सरसाइज 5.3. फ्रॉम द एक्सरसाइज 5.2 वी हैड डन लास्ट क्लास एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 and क्वेश्चन नंबर 2. नाउ लेट्स वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3. मेक 2 फैक्टर्स ईच ऑफ, इसके 2 फैक्टर्स निकालना है, विच कैन हैव अ मोर दैन 2 फैक्टर्स ट्री. और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि कौन से नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स निकलते हैं. तो यहाँ पे कौन से नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर निकलेंगे. सो फर्स्ट वी विल टेक आउट द फैक्टर्स ऑफ ईच नंबर. सो हम सबके 2 फैक्टर ट्री निकालेंगे, ठीक है. सो फर्स्ट इज द 16. सो 16
फर्स्ट नंबर इज द 16. सो 16 के हमें 2 फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है. सो फर्स्ट इज द, विल राइट हियर 16. 16 के 2 फैक्टर फर्स्ट निकल जाएंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 16. 8 मल्टीप्लाई बाय 16. 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 होता है. नाउ 2 को हम एज इट इज़ लिख देंगे क्योंकि 2 के फैक्टर निकलेंगे क्या, नहीं. देन 8 के फैक्टर निकलते हैं, यस. 4 इंटू 2. 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा. देन 2 के फैक्टर निकलेंगे क्या, नहीं निकलेंगे. 2 के फैक्टर्स नहीं निकलेंगे तो हम 2 को एज इट इज़ लिख देंगे. नाउ हम 4 के फैक्टर निकालेंगे. 2 मल्टीप्लाई बाय 2. 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो गया, ये फैक्टर्स निकल गए. तो 16 के फर्स्ट फैक्टर क्या निकल गए, 2 2 2. 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16 आ गया इसका 16. मीन्स ये फैक्टर यहाँ तक क्या हो गया है, ये यहाँ तक निकल गए, ठीक है. अभी 16 के और 16 और कौन से टेबल में आता है, 4 इंटू 4 16. 4 इंटू 4 16. सो नेक्स्ट इज द 4 इंटू 4. 4 into 4 16. Now 4 have a 2 again factor. 2 multiply by 2 4. 2 multiply by 2 4. So next 16 factors is the 4 and 4 and that 4 have a 2 factors. 16 को 4 into 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा. और 4 के 2 फैक्टर्स होंगे, 2 इंटू 2 4 होता है एंड 2 इंटू 2 4. सो दिस इज द 16 फैक्टर. देन नेक्स्ट नंबर इज द 20. नेक्स्ट नंबर इज द 20. सो 20 हाउ मेनी फैक्टर्स, सो 2 इंटू 10 20, 2 इंटू 10 20, 5 इंटू 4 20, देन 4 इंटू 5 20. सो फर्स्ट विल राइट 20. 20 के 2 फैक्टर्स लिख देंगे हम. 10 मल्टीप्लाई बाय 2. 10 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा, 20. नाउ 2 के फैक्टर्स निकलेंगे क्या, नहीं निकलेंगे. हम यहाँ पे 2 को एज इट इज़ लिख देंगे एंड यहाँ पे 10 के कौन से 2 फैक्टर निकलेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 2. भी 20 के फैक्टर्स क्या निकल गए, 5 2 2. 5 2 2. भी 5 2 और 2 इसके फैक्टर्स नहीं निकलेंगे तो हम यहाँ पे ही इसको छोड़ देंगे. अगेन 20 के फैक्टर्स कौन से निकलेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 और 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20. सो 4 वी विल राइट हियर एंड 5 वी विल राइट हियर. सो 5 के फैक्टर्स निकलेंगे क्या, नहीं निकलेंगे. 4 के फैक्टर्स क्या निकलेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 5 के फैक्टर्स क्या होंगे, कुछ भी नहीं. तो हम 5 को एज इट इज़ रख देंगे. तो 20 के और कौन से फैक्टर्स निकल गए, 2 2 5, 5 2 2 एंड 2 2 5. दिस आर द फैक्टर ऑफ द 20. देन नेक्स्ट नंबर इज द 30. नेक्स्ट नंबर इज द 30. 30. सो 30 के फैक्टर फर्स्ट इज द 2 इंटू 15. 2 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 होता है. सो फर्स्ट फैक्टर इज 30 15 मल्टीप्लाई बाय 2. हम 2 मल्टीप्लाई बाय 15 भी लिख सकते हैं लेकिन मैं 15 इंटू 2 क्यों लिख रही हूँ, जिसके फैक्टर्स नहीं निकल रहे हैं वो हम नेक्स्ट नंबर में लिख रहे हैं इसलिए. नाउ 2 एज इट इज़ हो जाएगा और 15 के फैक्टर क्या निकलेंगे, 3 इंटू 5 15. सो 30 के फैक्टर क्या हो गए, 3 5 2. हम फैक्टर जब तक निकालेंगे जब तक वो प्राइम नहीं होता है. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइम, सो प्राइम नंबर मीन द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इट्स ए नंबर. सो दिस नंबर इज नोन एज द प्राइम नंबर. सो 3 के कोई फैक्टर निकलेंगे क्या, नहीं. 5 के फैक्टर्स निकलेंगे क्या, फैक्टर्स मीन्स
ये किसी के साथ डिवाइड करेंगे, मतलब जैसे 15 होता है, 15 के फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, 3 एंड 5 आ रहे हैं। इसके 5 के कौन से फैक्टर आएंगे, क्या वो 1 और 5 होगा, 1 एंड 5 होगा। उसके अलावा इसके कुछ फैक्टर्स होंगे क्या, नहीं होंगे। तो जो नंबर प्राइम फैक्टर में निकलेंगे उस वहाँ तक ही हम उसको क्या करेंगे, ट्रे में उसको लिख देंगे। देन 30 के और कौन से फैक्टर निकलेंगे, 30 के और फैक्टर्स क्या निकलेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 10, अदरवाइज 10 मल्टीप्लाई बाय 3, 10 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, अभी 3 के फैक्टर्स निकलेंगे क्या, नहीं, 3 को एज इट इज़ लिख देंगे। अभी 10 के फैक्टर्स क्या निकलेंगे, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 कितना होता है, 2 इंटू 5 कितना होता है, 10 एंड 3। सो 30 के ये दो फैक्टर्स निकल गए। 30 के और कौन से फैक्टर्स निकलेंगे, 35 के प्लेस में भी आता है, 5 के टेबल में आता है, 5 इंटू 6 30। तो 30 के और फैक्टर निकलेंगे। तो हमारे क्वेश्चन में लिखा है कि कौन से नंबर के और फैक्टर निकलेंगे, तो 30 ये जो नंबर्स है इसके 2 से ज़्यादा और फैक्टर्स निकलते हैं। देन 32 और 36 ये आपको होमवर्क है, लाइक दैट यू कैन टेक आउट। सो 32 के कौन से 2 फैक्टर निकलेंगे, 2 इंटू 16, 1 फैक्टर 2 इंटू 16, एंड सेकेंड इज द अगेन 32 इज प्रेजेंट इन द 4 टेबल, 4 8 32। देन 36 2 इंटू 18 होगा, 2 इंटू 18 होगा, देन 4 9 36, तो इसके 2 फैक्टर्स निकलेंगे। देन 12 इंटू 3 आल्सो कमिंग, सो 36 के भी और 2 से ज़्यादा फैक्टर्स निकलते हैं, 36 के भी 2 से ज़्यादा और फैक्टर्स निकलते हैं। सो दिस इज द 12 एग्जाम्पल नंबर 4 and 5, these are the homework for you. And which of these have a more than 2 factors 3, तो यहाँ पे 30 36 ये दो नंबर है, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स निकलते हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स निकलते हैं। Now we'll start now. Next topic is the prime and composite number. So look at these फैक्टर ट्री ऑफ द 30 के फैक्टर्स क्या निकले हैं, देखो 6 इंटू 5 करेंगे तो 30 होता है, 6 के फैक्टर 3 2 और 5 एज इट इज़। 30 के और फैक्टर 3 इंटू 10 इंटू 3, सो यहाँ पे 5 इंटू 2 एंड यहाँ पे 3 एज इट इज़। देन 30 15 इंटू 2 33 मल्टीप्लाई बाय 5 30। तो यहाँ पे देखो आप, नोट दैट द बॉटम रो ऑफ द फैक्टर्स, अगर हम बॉटम रो देखेंगे फैक्टर्स के, तो वहाँ पे ऑल द फैक्टर्स ट्री शो द सेम फैक्टर 2 3 5। 2 3 5 cannot be split into the further factors. Each of them has a 2 factors 1 and number itself. जो नंबर्स उस नंबर के फैक्टर्स 1 एंड 2, उस नंबर के फैक्टर्स वो नंबर्स एंड वंस होता है इटसेल्फ नंबर, और वो नंबर्स होता है उसको बोला जाता है प्राइम फैक्टर। मतलब 2 जो नंबर है वो किसी टेबल में दिखेगा क्या, 2 के टेबल में सिर्फ 1 वाले प्लेस पे दिखेगा। 3 और किसी कौन से टेबल में दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। 2 जो 3 है वो 3 के फर्स्ट वाले प्लेस पे ही दिखेगा, मतलब 1 ही होगा उसका फैक्टर। देन 4 जो है वो 2 के भी टेबल में दिखता है, 2 2 सा 4 होता है, 4 1 सा 4 होता है, तो वो प्राइम नंबर है क्या, नहीं है। देन 5 सिर्फ वो 5 1 सा 5 होता है और किसी टेबल में दिखता है क्या, नहीं दिखता है। देन 6 3 2 सा 6 होता है और 2 3 सा 6 होता है, मतलब वो 2 और 3 के टेबल में दिखता है, तो 6 प्राइम नंबर होगा क्या, नहीं होगा। देन 7 प्राइम नंबर है, क्योंकि 7 के टेबल में सिर्फ 1 वाले प्लेस में आता है और कोई टेबल में नहीं आता है। देन 8 4 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, तो वो प्राइम नंबर है क्या, नहीं है। देन 9 आल्सो नॉट प्राइम नंबर, 9 भी प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 9 ये 3 के टेबल में आता है, 3 3 सा 9 और 9 1 सा 9, तो 9 भी प्राइम नंबर नहीं है। देन उसके बाद है 10
10 ये जो नंबर है 10 ये 2 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है और 10 के टेबल में भी आता है, तो ये प्राइम नंबर है क्या? नहीं। तो प्राइम नंबर मीन्स द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। प्राइम नंबर मतलब क्या होगा? ऐसा नंबर जिसके ओनली 2 फैक्टर्स है 1 एंड इटसेल्फ नंबर, उसके फैक्टर्स क्या है? 1 एंड इटसेल्फ नंबर है, उसी को ही हम बोलेंगे प्राइम नंबर। द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड द प्राइम नंबर। उसको क्या बोला जाता है? प्राइम नंबर। किसको प्राइम नंबर बोलेंगे? द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड द इटसेल्फ नंबर इज नोन एज द प्राइम फैक्टर। Now look at here, list the all prime number between the 11 to 20। 11 से लेकर 20 ये जो टेबल है नंबर्स है उसमें कौन से प्राइम नंबर है वो निकालना है। तो सबसे पहले 11 आ जाएगा, ठीक है। 12 आता है क्या प्राइम नंबर? नहीं। 12 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के आता है, 6 के आता है और 12 के भी आता है, तो 12 प्राइम नंबर है क्या? नहीं। देन 13, यस 13 प्राइम नंबर है क्योंकि 13 सिर्फ 13 के ही टेबल में आता है। देन 14 7 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, सो 14 इज द प्राइम नंबर? नो। सो 14 आल्सो नॉट प्राइम नंबर। देन 15 5 के टेबल में आता है, 15 के टेबल में आता है, तो 15 भी प्राइम नंबर नहीं है। देन 16 2 के टेबल में आता है, देन उसके बाद आता है 4 के टेबल में आता है, देन 16 के टेबल में आता है, तो 16 आल्सो नॉट प्राइम नंबर। देन 17 इज द प्राइम नंबर। 17 सिर्फ 17 के ही टेबल में आता है और किसी भी टेबल में नहीं आता है, तो 17 इज द प्राइम नंबर। देन 18 2 के टेबल में आता है, देन उसके बाद 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है एंड 18 के टेबल में आता है, तो वो प्राइम नंबर है क्या? नहीं, क्योंकि उसके 2 1 से ज़्यादा फैक्टर्स है, 2 नंबर से ज़्यादा फैक्टर्स है, इसलिए वो भी प्राइम नंबर है क्या? नहीं। देन 19 सिर्फ 19 के ही टेबल में आते हैं, 19 के ही 2 ही फैक्टर्स है 1 एंड इटसेल्फ नंबर। जिस नंबर के फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ नंबर होता है उसको बोला जाता है प्राइम नंबर। सो अगर हम लिस्ट और 20 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 10 के आता है और 20 के भी आता है, तो 20 आल्सो नॉट अ प्राइम नंबर। सो यहाँ पे प्राइम नंबर कौन से है? 11 13 17 एंड 19 दीज आर द प्राइम नंबर। Why these are the prime number? Because that all number have only 2 factors 1 and the number itself number, so this is known as the prime number. Then the number 4 6 8 9 10, the number 4 6 8 9 10 have a more than a 2 factor। जो नंबर 4 6 8 9 10 है उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है, उसको क्या बोला जाता है? नंबर विच हैव अ मोर दैन अ 2 फैक्टर, दिस नंबर इज नोन एज द कंपोजिट नंबर। जिस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उसको बोला जाता है कंपोजिट नंबर। जैसे 4 है, 4 2 के टेबल में भी आता है एंड 2 के टेबल में और 4 के भी टेबल में आता है, तो 4 के फैक्टर क्या हो गए? 1 2 4, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है मतलब 2 क्या है? कंपोजिट नंबर है। 6 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है 6 के, तो 6 के फैक्टर्स क्या है? 1 2 3 6, ये 6 के फैक्टर है, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है तो ये भी कंपोजिट नंबर है। देन 9 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, तो 9 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 3 9, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है मतलब 9 भी कंपोजिट नंबर है। देन 10 2 के टेबल में आता है, 5 के आता है और 10 के, मतलब 10 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 1 2 5 एंड 10, मीन्स 10 आल्सो कंपोजिट नंबर। द नंबर विच हैव अ मोर दैन अ 2 factors is known as the composite number. Now list all composite number between the 11 and 20। 11 और 20 के बीच में composite number निकालना है, तो 11 प्राइम नंबर है तो 11 आएगा क्या? नहीं। देन 12 प्राइम नंबर से क्या? नहीं है। 12 के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स निकलते हैं। 3 ऑलरेडी प्राइम नंबर से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 40
क्योंकि 14 क्या है, कंपोजिट नंबर है. 15 आल्सो composite number. Then 16 also composite number. 17 is the prime number. Then 18 also composite number, and last is the 20. So these are the all composite number. These are the all composite number. So 12, 14, 15, 16, 18 and 20 are the composite number. So which number is known as the prime number? The number which have only two factors, 1 and the number itself. This is known as the prime number. And what are the composite number? The number which have a more than two factor. This is known as the composite number. तो जब हम क्या करेंगे, फैक्टर ट्री को निकालेंगे, तो हम उस नंबर के फैक्टर्स निकालेंगे जब तक वो प्राइम नहीं होता है. उस नंबर के फैक्टर हम निकालेंगे जब तक वो नंबर कौन सा नहीं होता है, वो नंबर प्राइम नंबर नहीं होता है. जैसे यहाँ पे 30 के फैक्टर्स हमने कब तक निकाले, जब तक वो कंपोजिट नहीं हुआ है तब तक. तो जब हमें फैक्टर ट्री का एग्जांपल दिया है और हमें फैक्टर्स निकालना पड़ता है, तो उस नंबर के हम फैक्टर कब तक निकालेंगे, जब तक वो नंबर क्या नहीं हो जाएगा, वो नंबर प्राइम नहीं हो जाएगा तब तक. Then property of factors. Every number can divide by 1 without the leaving a remainder. Therefore 1 is the factor of every number and 1 is the smallest factor of the every number. 1 ये जो नंबर्स है वो सभी नंबर का फैक्टर्स होता है और 1 इज़ द स्मॉलेस्ट फैक्टर्स ऑफ एवरी नंबर. सभी नंबर का सबसे छोटा फैक्टर्स क्या होता है, 1 होता है. सबसे छोटा फैक्टर्स एवरी नंबर का क्या होता है, 1 होता है. तो सभी नंबर्स 1 का फैक्टर्स होता है, इसलिए सभी नंबर का फैक्टर 1 ही होता ही है. जैसे 2 को 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा, यस. Every number can be divided by itself without the leaving a remainder. Therefore every number is the factor of itself. Means 2 को अगर हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 2 1 सा 2 होता है, मतलब ये कम्प्लीटली डिवाइड होगा. मतलब एवरी नंबर इज द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ नंबर. एवरी नंबर हैज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ नंबर. देन 3 नंबर, अ नंबर हैज़ अ लिमिटेड नंबर्स ऑफ फैक्टर. नंबर को लिमिटेड फैक्टर्स होते हैं. जैसे 15 हैज़ अ 4 फैक्टर, 24 हैज़ अ 8 फैक्टर. तो किसी भी नंबर के लिमिटेड फैक्टर होंगे, वो अनलिमिटेड नहीं होंगे, वो लिमिटेड होते हैं. और फैक्टर्स ऑफ नंबर इज नाइदर इक्वल और स्मॉलर दैन द नंबर. द बिगेस्ट फैक्टर ऑफ द नंबर इज नंबर इटसेल्फ. जो फैक्टर्स होते हैं नंबर के, वो नाइदर इक्वल भी नहीं होते हैं और ना स्मॉल भी होते हैं. द फैक्टर्स ऑफ नंबर इज नंबर इटसेल्फ. वो बिगर फैक्टर्स ऑफ द नंबर इटसेल्फ होते हैं. Now all of you look at here exercise 5.4, fill in the blanks. So now first question is, each prime number has a exactly filling the blanks factor. जो प्राइम नंबर्स होता है उसको कितने फैक्टर्स होते हैं स्टूडेंट, 1 2 3 4 5. सो एवरी प्राइम नंबर्स हैव अ एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स. कितने फैक्टर्स होते हैं, 2 factors. So which 2 factors, 1 and the itself number. Every number have a 2 factors, 1 and itself number. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2. The factors of a prime number are number itself and जो प्राइम नंबर होते हैं उसके 2 factors होता है, itself and number 1. तो every prime number have a 2 factors. Which 2 factors, itself number and 1. Every prime number के 2 factors होते हैं, 1 and the itself number. The number filling the blanks has a only 1 factors. कौन सा नंबर है उसको सिर्फ 1 ही फैक्टर्स होता है, तो 1 के सिर्फ 1 ही फैक्टर्स होंगे, उसके ज़्यादा फैक्टर्स होंगे क्या, जैसे 2 है, 2 का फैक्टर 1 और 2 ये 2 फैक्टर्स हो जाएंगे. लेकिन 1 ऐसा नंबर है कि उसका सिर्फ 1 ही फैक्टर्स होता है, ओनली 1. द नंबर 1 हैज़ ओनली 1 फैक्टर. द नंबर 1 हैज़ ओनली 1 फैक्टर्स. देन 4th नंबर, इफ अ नंबर हैज़ अ मोर देन 2 फैक्टर, इट इज़ नॉट a filling the blanks number.
अ नंबर विच हैव अ मोर देन 2 फैक्टर, अगर मोर देन 2 फैक्टर्स है तो उसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं. इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर. वो कौन सा नंबर नहीं होगा? प्राइम नंबर. अगर यहाँ पे इफ़ अ नंबर हैज़ अ मोर देन अ 2 फैक्टर इट इज़ नॉट नहीं होता तो यहाँ पे कंपोजिट आता. तो यहाँ पे क्या आ रहा है? इफ़ द नंबर हैज़ अ मोर देन 2 फैक्टर इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर. वो क्या नहीं होगा? प्राइम नंबर नहीं होगा. तो यहाँ पे क्या आता है? प्राइम नंबर. फिलिंग द ब्लैंक्स इज द नंबर विच इज नाइदर प्राइम और अ कंपोजिट. ऐसा कौन सा नंबर है? वो प्राइम भी नहीं होता है और कंपोजिट भी नंबर नहीं होता है. 1 is neither prime and neither prime and neither prime or nor composite. यहाँ पे लिखा है देखो. Note that the 1 is neither prime or nor composite. It is the unique number. ये क्या है? यूनिक नंबर है. 1 प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है. 1 इज़ द यूनिक नंबर. 1 इज़ द यूनिक नंबर. 1 नॉट अ प्राइम नंबर और नॉट अ composite number. So this is exercise 5.4 question number A. Then question number B is the list of the prime number between. यहाँ पे हमें prime number की list निकालनी है. ठीक है. So this question number B we will be see in our next period. So I hope all of you nicely understood. Thank you and have a nice day.